Okay, practice set 3.3 and arithmetic progression. First sum. First term and a common difference of an AP are 6 and 3. So here the first term is 6 and the common difference is 3. Then find the sum of 27 terms. Okay. So the formula for Sn is equal to n by 2 minus n by 2 times 2a plus n minus 1 times d. It is the formula. So therefore sum of 27 terms is equal to 27 by 2 into 2 times 6 plus 27 minus 1 times 3. So which is equal to 27 upon 2. 2 6 are 12 plus 26 times 3. So which is equal to 27 upon 2 into 12 plus 26 3s are 78. So which is equal to 27 times 27 upon 2 times 12 plus 78 is 80 90. Okay, 90. So 2 ones are 2 45s are. So 27 into 45 is 5 sevens are 35, 4 sevens are 28, 31 and 19. So 5, 1, 12, 1, 2, 1, 5. Okay. So the sum of 27 term is 1, 2, 1, 5 and it is the answer of this first question. Okay, now the second sum. Find the sum of first 123 even natural number. Okay. So even natural number तो ऐसा आएगा 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट. तो इसमें पहला 123 इवन नेचुरल नंबर का सम चाहिए, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा सम ऑफ 123 नंबर्स. ओके, तो यहाँ पर ये इक्वल टू 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 2. सो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला इज n अपॉन 2 टाइम्स 2a plus n minus 1 times d. So therefore sum of 123 terms is equal to 123 upon 2 times 2 times 2 plus 123 minus 1 times the common difference, that is also 2. So which is equal to 123 by 2 and 2 2s are 4 plus 122 times 2. So which is equal to 123 divided by 2 and 4 plus 122 times 2 is 244. Okay, 244. फिर इन दोनों को ऐड किए तो हमें मिलेगा 248. फिर इसे डिवाइड किए हमें मिलेगा 124. 123 इंटू 124. 3 4s are 12. 2 4s are 8 plus 1 9. 1 4s are 4. 246 and 123. Okay. So 2 15 8 9 12 5 1. So the answer is 1 2 1 5 2 5 2. So the sum of first 123 even natural number is 15252. Okay, students, it is the answer. Okay, third sum. Find the sum of all even natural numbers from 1 to 350. Even numbers from 1 to 350. So 1 to 350 तक रहने वाला even number का total चाहिए. Okay.
सो 1 to 350 तक क्या क्या इवन नंबर से 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। तो 1 to 350 तक मतलब 350 नहीं लेने का, उसके पहले का नंबर लेने का। ओके, सो 348 तक आएगा। तो यहाँ पर a इक्वल टू 2 एंड d इक्वल टू 2 एंड वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द इवन नंबर फ्रॉम 1 to 350। लेकिन वो कितना नंबर है वो नहीं मालूम है, तो हमें सम ऑफ n नंबर इक्वल टू क्या है ये फाइंड आउट करने का। तो इसके लिए पहले हम लास्ट टर्म को nth टर्म लेंगे। अगर हम ऐसा लिए तो हमें n पता चल जाएगा, n मतलब कितना नंबर्स है इधर, फिर हम सम ऑफ n नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर हम nth टर्म का फार्मूला पहले यूज करेंगे, विच इज a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, and here the nth term is 348, so which is equal to 2 plus n minus 1 times 2, so therefore 348 minus 2 equal to 2 times n minus 1, so therefore 346 divided by 2 equal to n minus 1। फिर इसे हम डिवाइड किए तो हमें मिलेगा 1 जार 7 जार 3 जार 173, so therefore 173 plus 1 equal to n। तो अभी हमें n पता चला कि 174। तो यहाँ पर कितना नंबर ऑफ टर्म्स है स्टूडेंट, यहाँ पर 174 नंबर ऑफ इवन नंबर्स हैं, तो इन सबका टोटल चाहिए ना, तो हमें सम ऑफ n टर्म चाहिए। सो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला इज एक्चुअली n अपन 2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। लेकिन इसका और एक सिंपल फार्मूला भी स्टूडेंट, सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू n अपन 2 टाइम्स द फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म। ओके, ये फार्मूला भी हम यूज करेंगे। सो सम ऑफ n तो पता चल गया कि 174 टर्म्स है, तो सम ऑफ ऑल द 174 टर्म्स इज इक्वल टू 174 upon 2 times the first term is 2 and the last term is 348। okay, so which is equal to 174 upon 2 times 350। फिर इन दोनों को डिवाइड किए तो 174 इंटू 175 आएगा। सो 174 into 175 which is 0 4 5 are 20 0 balance 2 and 7 5 are 35 37 balance 3 1 5 are 5 plus 3 8 4 7 are 28 balance 2 30 49 51 balance 5 7 plus 5 12 and 174, so which is nothing but 0 15 balance 1 10 14 balance 1 0 balance 1 3, so 30,450 is the answer। okay, okay, fourth sum, in an AP 19th term is 52। okay, एक arithmetic progression में 19th term is 52 and the 38th term is 128, so 38th term is 128, then find the sum of first 56 terms। so sum of 56 terms is equal to question mark। okay, so यहाँ पर 19th टर्म अगर 52 है तो यहाँ पर अगर हम फार्मूला यूज किए ना nth टर्म का, तो हमें मिलेगा कि 19th टर्म इज इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1 टाइम्स d, so therefore the 19th term is 52 equal to a plus 18d, so this is one equation। और यहाँ पर सेम फार्मूला अगर हम 38th टर्म के लिए यूज करेंगे तो 38th टर्म equal to a plus 38 minus 1 times d, so therefore the 38th term is 128 equal to a plus 37d। okay, तो यहाँ पर अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन हमें चाहिए 56th टर्म। ओके, तो एक्चुअली इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर ये सब में, तो ऐड किए तो हमें मिलेगा a प्लस ये 2a प्लस 18 प्लस 37 इज 47 57 में 2 जाएंगे तो
55d is equal to 128 plus 52 is 180, ऐसा कुछ मिलेगा. ओके अच्छा, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ऐसा रखो. चलो अभी हमें चाहिए सम ऑफ 56 टर्म. सो सम ऑफ 56 टर्म्स का फॉर्मूला आएगा 56 अपॉन 2 टाइम्स 2a प्लस 56 minus 1 times d, so which is equal to 28 times 2a plus 55d. लेकिन 2a प्लस 55d का वैल्यू तो हमारे पास इधर है स्टूडेंट 180, तो वो अभी हम अंदर लिखेंगे 180. तो फिर इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 28 इंटू 18, so 8 8s are 64, 2 8s are 16, 22 and 28, so 405. तो हमें मिलेगा 5040 and it is the answer of sum of 56 terms. Okay, sum of 56 term is 5040. Okay, complete the following activity to find the sum of natural numbers from 1 to 140 which are divisible by 4. अच्छा, 1 to 140 तक रहने वाला नंबर्स which are divisible by 4 का सम हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट, 1 to 140 में पहले 4 से डिवाइड होने वाला नंबर तो 4 है, फिर उसके बाद में 8 डिवाइड होगा, फिर उसके बाद में 12 डिवाइड होगा एंड सो ऑन. लास्ट से तुम आएगा ना 140 तो डिवाइड होगा, लेकिन 140 नहीं लेने का. मैं अभी भी समझाया था दैट सम में भी. फ्रॉम 1 to 140 लेकर आएगा तो 140 छोड़ के उसके पहले का नंबर लेना पड़ेगा, यानी कि लास्ट नंबर इज 136 आएगा. ओके, तो यहाँ पर ये इक्वल टू 4 एंड द कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 4, बट वी नीड टू फाइंड द n इक्वल टू व्हाट. सो इसलिए हम पहले लास्ट टर्म को nth टर्म लेंगे ताकि हमें n मिल जाएगा. फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि सम ऑफ n टर्म इक्वल टू कितना. ओके, तो पहले हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सो nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d. सो देयरफॉर 136 इक्वल टू 4 प्लस n माइनस 1 टाइम्स 4. सो देयरफॉर 136 माइनस 4 equal to 4 times n minus 1. So therefore 132 divided by 4 equal to n minus 1. अगर इसे हम डिवाइड किए तो 4 3 ज़र 12 एंड बैलेंस 1 4 3 ज़र 12, so 33 आएगा. 33 प्लस 1 इक्वल टू n. सो देयरफॉर n इक्वल टू मिला 34. तो यहाँ पर 34 नंबर ऑफ टर्म्स हैं जिसका सम चाहिए हमें. तो सम ऑफ n टर्म्स का दो फार्मूला है हमारे पास, n अपन 2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d. लेकिन इसमें मैं लास्ट टर्म मालूम है ना स्टूडेंट, तो दूसरे इसी फार्मूला यूज़ करेंगे. n अपन 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म. ओके, सो देयरफॉर सम ऑफ 34 टर्म्स इज इक्वल टू 34 अपन 2 टाइम्स द फर्स्ट टर्म इज, here the first term is 4 plus the last term is 136. Okay, so which is equal to 34 upon 2 times 140. फिर इसे हम डिवाइड किए ना तो हमें मिलेगा 70. सो 34 इंटू 70 0 एंड 4 7s are 28 बैलेंस 2 एंड 3 7s are 21 प्लस 2 23. तो इसका आंसर आएगा 2380. ओके स्टूडेंट्स, ओके सिक्स्थ सम. द सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन AP is 3300. ओके, सो हियर द सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स is equal to 3300 and we need to find its 28th term. ओके, तो हमें ये 28th टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट, Sn का फॉर्मूला इज Sn इक्वल टू n अपॉन 2 टाइम्स 2a प्लस
n minus 1 times d. So therefore sum of 55 terms is equal to, तो n में आएगा 55 upon 2 times 2a plus 55 minus 1 times d. So therefore 3300 is equal to 55 upon 2 times 2a plus 54d. ओके, सपोज अभी यहाँ 3300 is equal to 55 upon 2 times. सपोज अभी यहाँ से हम 2 कॉमन लिए तो अंदर हमें मिलेगा a प्लस 27d. ओके, फिर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 55 यहाँ पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. सो देयरफॉर 3300 डिवाइडेड बाय 55 इज इक्वल टू a प्लस 27d. फिर यहाँ पर अभी हम 11th टेबल यूज करेंगे तो 5 ज़ा 3 ज़ा, फिर 5th टेबल यूज किया तो 1 ज़ा 6 ज़ा, तो हमें मिला a प्लस 27d इज इक्वल टू 60. देयरफॉर a प्लस 27d is equal to 60 and it is our equation number 1. okay, चलो अभी therefore हमें क्या चाहिए था, 28th टर्म चाहिए था ना. सो 28th टर्म इज इक्वल टू nth टर्म का फॉर्मूला इज a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d. So therefore 28th term is equal to a plus 27d. लेकिन a plus 27d का वैल्यू तो हमारे पास इधर है स्टूडेंट, a plus 27d का वैल्यू तो 60 है ना, तो वो यहाँ पर आएगा. So therefore the 28th term is 60. और ये वैल्यू हमें कहाँ से मिला, we got it from equation number 1. So therefore it is the answer. okay, okay, 7th sum in an arithmetic progression, sum of 3 consecutive terms is 27. okay, ये एक arithmetic progression में sum of 3 term is 27 and their product is 504. okay, फाइंड द टर्म. सो कभी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर 3 टर्म का सम आएगा ना तो तीनों टर्म हमें ऐसा लेना पड़ेगा कि a माइनस डी इज द फर्स्ट टर्म एंड a इज द सेकेंड टर्म एंड a प्लस डी इज द थर्ड टर्म. ओके, फिर यहाँ पे लिखा है कि सम ऑफ 3 कंसिक्यूटिव टर्म इज 27. तो सम ऑफ 3 कंसिक्यूटिव टर्म मतलब ऐड करना पड़ेगा. सो a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, और इसका टोटल कितना 27 एंड इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. फिर इसमें माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया तो हमें मिलेगा 3a इज इक्वल टू 27. सो देयरफॉर a इक्वल टू 27 अपॉन 3, देयरफॉर a इक्वल टू 9. तो अभी हमें ये पता चला 9. और यहाँ पे और एक कंडीशन भी है कि एंड देयर प्रोडक्ट इज 504. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन. सो तीनों टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी. तो तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा 504. इट इज़ ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन. फिर यहाँ पर इन दोनों नंबर में तुम ध्यान दो स्टूडेंट्स, a माइनस डी ए प्लस डी, ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला में आएगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, सो a टाइम्स a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ऐसा हो जाएगा इक्वल टू 504. चलो अभी हम ये का वैल्यू यूज करेंगे एंड ये का वैल्यू तो 9 है ना, तो 9 टाइम्स 9 स्क्वायर
माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504। फिर ये जो मल्टीप्लाई 9 है वो वहाँ पे जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। सो देयरफॉर 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504 divided by 9. 9 ones are 9, 9 6 are 63, 54. So 9 5s are 45. Balance 5 54. 54 में 9 6 are, तो अभी हमें मिला therefore 81 minus 56 is equal to d square. So therefore d square equal to 81 में 56 जाएगा तो 24 plus 25 मिलेगा। ओके, so therefore the difference is equal to plus or minus square root of 25. So therefore the difference is, common difference is plus or minus 5. तो ये और डी मिला ना स्टूडेंट, तो अभी हम वो तीनों टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट टर्म इज 9 and the common difference is plus 5, और if the first term is 9 वो तो 9 ही रहेगा, एक ही आंसर मिला, and the common difference is minus 5। ओके, तो क्या आंसर मिलेगा? फर्स्ट टर्म इज ये माइनस डी था which is equal to 9 minus 5 which is equal to 4. Second term ये था 9 and the third term is a plus d which is 9 plus 5 which is equal to 14. Okay, और यहाँ पर the first term is a minus d which is equal to 9 minus into minus plus 5 14, and the second term is a 9 and the third term is a plus d which is equal to 9 plus into minus minus 5 which is equal to 4. So therefore either वो तीनों नंबर, तीनों कंसेक्यूटिव अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नंबर या तो 4 9 14 रहेगा या फिर 14 9 4 रहेगा। इसका मतलब वो सेम है, या तो ये ऑर्डर में रहेगा या फिर वो ऑर्डर में रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके 8 सम, यहाँ पर फाइंड 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12 and the sum of the third and fourth term is 14, ऐसा दिया है स्टूडेंट। ओके, अगर 4 consecutive terms का सम है स्टूडेंट तो हम चारों टर्म ऐसा ले सकते हैं कि फर्स्ट टर्म ये, सेकेंड टर्म ये प्लस डी and the third one a plus 2d and the fourth one a plus 3d। ओके, और यहाँ पर लिखा है कि the sum of find the 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12, तो इन सबको ऐड किया तो 12 मिलना चाहिए, यानी कि a plus d plus a plus 2d plus a plus 3d, इन सबको ऐड किया तो एक्चुअली 12 मिलना चाहिए। ओके, सो देयरफॉर a plus a plus a plus a is 4a plus d 2d 3d plus 3d 6d is equal to 12। अगर इसमें से हम 2 कॉमन निकाल देंगे स्टूडेंट तो हमें मिलेगा 2a plus 3d is equal to 12। So therefore 2a plus 3d is equal to 12 divided by 2। So therefore 2a plus 3d is equal to 6 and it is our equation number 1। okay, चलो, और यहाँ पे ये भी लिखा है कि and the sum of the third and the fourth term is 14। ओके, सो थर्ड एंड फोर्थ टर्म का अगर हम टोटल करेंगे ना, थर्ड टर्म मतलब a plus 2d
प्लस ये प्लस 3d, अगर इन दोनों का हम टोटल करेंगे ना तो हमें 14 मिलेगा. ओके, सो देयरफॉर 2a plus 5d is equal to 14 and it is our equation number 2. अभी हम इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो देयरफॉर 2a plus 5d is equal to 14 and 2a plus 3d is equal to 6. तो सब्ट्रैक्ट करने के टाइम में साइन चेंज होगा, तो ये माइनस माइनस माइनस, तो ये 2a कैंसिल हो जाएगा. 5 में 3 जाएगा तो 2d इज इक्वल टू 14 में 6 जाएगा तो 8. सो देयरफॉर d इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, देयरफॉर d इज इक्वल टू 4. तो अभी d मिला 4, तो ये d को अभी हम सब्सटीट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में. ओके, सो देयरफॉर इक्वेशन 1 में है हमारे पास 2a प्लस 3 टाइम्स d के लिए 4 इक्वल टू 6, देयरफॉर 2a प्लस 12 इक्वल टू 6, देयरफॉर 2a इक्वल टू 6 माइनस 12, देयरफॉर 2a इज इक्वल टू माइनस 6, देयरफॉर a इक्वल टू माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, देयरफॉर a इक्वल टू माइनस 3. तो अभी हमें ये और d पता चला ना स्टूडेंट, तो अभी हम 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एन AP फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट टर्म था ये यानी कि -3, सेकेंड टर्म था ये प्लस d यानी कि -3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 1, फिर ये प्लस 2d विच इज इक्वल टू -3 प्लस 2 टाइम्स 4 विच इज इक्वल टू -3 प्लस 8 which is equal to 5 and a plus 3d, so -3 plus 3 times 4 -3 plus 12, so 9 and all the 4 terms are mila student, therefore the 4 terms are -3 1 5 and 9. Okay, ninth sum, if the 9th term of an AP is 0, then show that 29th term is twice the 19th term. Okay, स्टूडेंट अगर 9th term अगर 0 रहेगा तो हमें शो दैट करना पड़ेगा. टू शो 29th term is twice the 19th term. ओके, चलो पहले हम 9th टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे. तो nth टर्म का फॉर्मूला इज a प्लस n minus 1 times d. So therefore the 9th term is equal to a plus 9 minus 1 times d. So 9th term तो 0 है ना, तो 0 is equal to a plus 8d. So therefore a equal to minus 8d and it is our equation number 1. Okay, चलो अभी हमें क्या शो दैट करने का था कि 29th टर्म इज 2 टाइम्स द 19th टर्म. ओके, तो इसमें से पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. LHS इज नथिंग बट 29th टर्म. 29th टर्म का फॉर्मूला आएगा a प्लस 29 minus 1 times d, so which is equal to a plus 28d, which is equal to a के लिए हम लिखेंगे minus 8d plus 28d और ये हमें मिला from equation number 1. Okay student, so minus 8d plus 28d is nothing but plus 20d and it is our equation number 2. ये लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है. अभी हम राइट हैंड साइड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 टाइम्स द 19th टर्म
2 टाइम्स 19th टर्म का फॉर्मूला आएगा कि a प्लस 19 माइनस 1 टाइम्स d, so which is equal to 2 times a plus 18d, और a के लिए हम पुट करेंगे माइनस 8d फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सो माइनस 8d प्लस 18d, और ये वैल्यू हमें मिला फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. सो 2 टाइम माइनस 8d प्लस 18d का आंसर तो आएगा 10d, लेकिन 2 टाइम्स 10d हो जाएगा 20d, एंड इट इज आवर इक्वेशन नंबर 3. अभी तुम इक्वेशन 2 और 3 को ध्यान से अगर देखेंगे ना स्टूडेंट, तो दोनों का वैल्यू इक्वल है. सो देयरफॉर द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS. ये हमें कहाँ से मिला? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3. ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया. देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड में जो था 29th टर्म इज इक्वल टू 2 टाइम्स द राइट हैंड साइड वैल्यू 19th टर्म, और यही हमें प्रूफ करने का था. सो ये प्रूफ हो गया. सो hence proved. Okay students,